Allah the Almighty, the most gracious and merciful. All the praises belong to Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the master and owner of the day of judgment too. That's why we want support and help from Almighty Allah every time, because He is the master and owner of the entire universe as well as the day of judgment too. We want the help and support from Almighty Allah. If Almighty Allah is together with us, it means each and every power of the world is together with us. But if the entire world is together with us and we are really, in the eyes of people, we are really so rich, so wealthy. But if the help and support of Almighty Allah is not together with us, it means still we are helpless and hopeless too. So starting with the great name of Almighty Allah. Now today it is really important task today. Because today in this class we have to learn active and passive voice. So many students of the class demanded that, sir, please teach us about the active and passive voice. Give us some lessons, give us some hints about the active and passive voice. So today in this class we would learn some special points about the active and passive voice. So are you ready for that? Yes, so thank you very much. The smiling faces are indicating there that each and every student is really happy due to such outstanding and super terrific topic. So thank you very much. First of all, we in previous time different usages and different tenses we discussed in active. But today we have to learn and we have to discuss about these things, how we have to convert such kind of sentences into passive voice. Okay, if you want, I would share so many definitions too, but here no need of any definition. Only we have to make the focus towards our task, and because here in this limited time, we have to learn so many points about the passive too. In this class today, the assertive sentences would be in our focus. The tenses as well as some usages would be in our sight. We would make the passive of these sentences. So first of all, we have to learn that which are the special steps or which are the specific points before learning passive voice. So first of all, this thing must be in our mind that we must be well known and familiar about the subjective and objective case. Subjective and objective case जी खबर है केड़ा subjective case and केड़ा objective. एड़ा pronoun जे की subject में use कया वजन उनके subjective case चे बुआ. मिसाल तौर I subjective case आ. अहिला जो objective case चाहे me. Active passive ला subjective and objective case ज़रूरी है. I subjective case आ. The objective case of I is me. This is me, this is the subjective case and its objective case is us. Very nice. This is you, objective case, you. He, the objective case of he is him. She, the objective case of she is her. It, objective case of it is same, it. If there is the third person plural, they, its objective case is them. So these are the subjective cases and these are the objective cases. Before starting, before learning the passive voice, these are the special pronouns which we have to learn. These are the subjective cases and these are the objective cases. I is the subjective, me is the objective. Like that, these are the subjective cases and these are the objective cases. Have you understood about that? So after that, whenever there are the active sentences, different kinds of verbs, different verb forms we use in active sentence. In present simple, we use first form. In present continuous, fourth form. In past simple, second form. In present perfect tense or past or future perfect tenses, we use the third form. In future simple, first form. With the usage of can or potential tense, first form. With should, would, may, might, first form. Should have, would have, could have, might have, must have, we use the third form. So different kinds of verb forms we use
in active sentence. But remember, whenever there are the sentences of passive, in each and every passive we use the third form. So I think this would be really easy and simple task for us to learn the passive, because in each and every passive we have to use the third form. So these are the subject and objective cases. Then a special point we have learned that in each and every passive we have to use the third form. Two things. Third, in active, different helping verbs are there. But in passive, there are the different helping verbs of different tenses. For example, if there is the present simple, we use the first form, and the helping verbs of present simple are in active, do and does. But in passive, past simple, the helping verb is did. But in passive, helping verbs was and were. Like that, future simple, will, shall. But in passive, the helping verbs are future simple, shall be and will be. Present continuous helping verbs is, am, are. But in passive, is, being, am, being, or being. It means after is and am and are we have to apply being. Was, were, past continuous tense, active helping verb. Passive, was, being and were being. Present perfect tense, has, have. But in passive, has, been and past perfect, had. But in passive, had been. Like that, future perfect tense, shall have, will have in active. But in passive, there are some different uses. Shall have, will have, and shall have been, will have been. This is the future perfect tense. Now some usages can, may, might, could, should. If there are such kind of helping verbs in active sentences, in passive there will be can be, may be, might be, could be, should be, would be. We have to add only be with together with them. बाबू जेकर एक्टिव में ही हेल्पिंग वर्ब आहिनि त असांजा पैसिव में हेल्पिंग वर्ब छा थींदा इन्हनि सां बी मिलाईंदासीं केन सां छा मिलाईंदासीं मे सां बी माइट सां कुड सां शुड सां वुड सां बी वरी जेकर हेल्पिंग वर्ब आहिनि शुड हैव मस्ट हैव वुड हैव माइट हैव मस्ट हैव त पैसिव में इन्हनि सां बीन जो इज़ाफ़ो कंदासीं शुड हैव बीन must have been, would have been, might have been, must have been. ये theoretical हिकिड़ी मूं ॻाल्हि ॿुधाए छॾी त हीअं कंदासीं पर हाणे असां बाक़ाइदा प्रैक्टिकली हिन क्लास में इहे सभु जेकी शयूं ॿुधायूं आहिनि इनखे सिखंदासीं सम्झण जी कोशिशि कंदासीं ऐं असांजे फोकस में नज़र में असां में उहा टेस्ट हूंदी त उन टेस्ट में कहिड़े नमूने सां क्वेश्चन अची सघनि था ऐं असां उन्हनि जो आंसर कीअं सिलेक्ट कंदासीं कीअं जांचींदासीं परखींदासीं सो आर यू रेडी फॉर दैट मूं ॿ ॻाल्हियूं कयूं कुझु ॻाल्हियूं ही कयूं त बाबा ही सब्जेक्टिव केस आहिनि ही ऑब्जेक्टिव केस आहिनि ऐं ही छा आहिनि ही हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस में जेकॾहिं ही हेल्पिंग वर्ब हुजनि त पैसिव में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ थींदा ॿी मूं हिकिड़ी ॻाल्हि कई त पैसिव जे हर सेंटेंस में वर्ब जो थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो आहे एक्टिव में मुख़्तलिफ़ वर्ब जा फॉर्म यूज़ थींदा आहिनि ऐं पर पैसिव में वर्ब जो थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो आहे ऐं उन खां पोइ प्रीपोजिशन यूज़ थींदी आहे मुख़्तलिफ़ प्रीपोजिशन यूज़ थींदो आहे पर अॼु जेको असांजो डिस्कस थींदो त उन में असां बय यूज़ कंदासीं बय वारा असां प्रोनाउन यूज़ कंदासीं सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी हाणे अचो त हिकिड़ो सेंटेंस कयूं ऐं उन मां सिखण जी कोशिशि कयूं बाबा हीअ ॻाल्हियूं तव्हांखे सम्झ में अची वियूं आहिनि न बाबू हाणे हिकिड़ो सेंटेंस असां कन्वर्ट करे ॾिसंदासीं त उनखे पैसिव में कीअं कबो Now I have written here the sentence, simple and easy sentence. She watches TV. Simple sentence. First of all, whenever we have to convert an active sentence into passive voice, we must look at the sentence that what kind of tense is there or the usage is there. So which tense is there? Present simple tense. Here is the present simple tense. And what are the helping verbs of present simple in past, in passive? Here, present simple tense आहे जेकर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हिन जा डू डस थींदा त पैसिव में हिन जा हेल्पिंग वर्ब छा हाणे इहा ॻाल्हि यादि रखिजो हिन जा पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आहिनि इज़ एम आर हाणे पैसिव कबो कीअं सेंटेंस सभ खां पहिरीं कबो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सचेंज
The subject in the place of object and object in the place of माना subject रखंदासी object में object subject में शी जो objective case छा होते लिखियो सी शाबाश ऐं TV साॻियो ते कम noun जो pronoun object में subjective case same थींदो पहिरों स्टेप इहो थींदो असां एक्सचेंज कंदासीं बदलाईंदासीं मटाईंदासीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट पर पैसिव करणो आहे पहिरों स्टेप असांजी ज़िंदगी में सेकंड स्टेप इज दैट वी हैव टू कीप द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सब्जेक्ट एज वेल एज द टेंस असांजो ॿियो स्टेप हूंदो त असांखे हिते हाणे हेल्पिंग वर्ब रखणो आहे छाजे मुताबिक़ ही टेंस ॾिसंदासीं कहिड़ो उन जे मुताबिक़ गॾोगॾु नओं सब्जेक्ट कहिड़ो आयो उन जे मुताबिक़ हाँ टेंस कहिड़ो आहे प्रेज़ेंट सिंपल जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कहिड़ा आहिनि ऐं सब्जेक्ट नओं कहिड़ो आयो आहे टीवी सां छा यूज़ कयां इज़ एम आर इज़ सेकंड स्टेप इहो आहे दिस इज़ द सेकंड स्टेप हाँ सेकंड स्टेप खां पोइ असांजो थर्ड स्टेप आहे दैट इन ईच एंड एवरी पैसिव वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सो हियर इज वॉच व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच टियों स्टेप इहो थी वियो असांजो दिस इज द थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप इज दैट वी हैव टू कीप द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्टिव केस मुख़्तलिफ़ प्रीपोजिशन यूज़ कबियूं आहिनि पर अॼु जेको असां टास्क में बय हलनि जी बाबा शी वॉचिस टीवी पैसिव थींदो टीवी इज़ वॉच्ड बाय हर हाणे एक्टिव मां सेंटेंस छा में थी वियो पैसिव में थी वियो सम्झ में अची वियो ॻाल्हि कीअं करिणो पवंदो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रखिबो ऐं पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं वर्ब जो असां थर्ड फॉर्म रखंदासीं बाय ॾेई छॾींदासीं बाबा पैसिव थी वियो समझ में चलो अॼु थोड़ी क्लास थोड़ो चेंज कंदासीं तव्हांखे बि थोड़ी महिनत करणी पवंदी चलो मां सेंटेंस लिखां थो जल्दी में मूंखे पैसिव करे ॾियो जल्दी जल्दी शाबाश शी वॉज कॉलिंग हिम ही असांखे पैसिव में करिणो आहे सेंटेंस वेरी नाइस मुंहिंजा टेस्ट में तो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो ऑप्शन ईंदा हिकिड़ो सेंटेंस एक्टिव जो लिखियल आहे 4 ऑप्शन आहिनि करे छॾियो बाबा शाबाश वेल डन जी बाबू हाणे मां ऑप्शन थो ॿुधायां हाणे ॾिसो पैसिव में वाज़ यूज़ थियल आहे वाज़ माना पास्ट कंटिन्यू सुञाणणु ज़रूरी आहे पैसिव करण लाइ तव्हां एक्टिव सेंटेंस सुञाणो आहे त ही टेंस कहिड़ो आहे यूज़ेज कहिड़ो आहे हिन जा पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कहिड़ा थींदा आहिनि बाबा हिते वाज़ यूज़ थियल आहे वाज़ खां पोइ वर्ब फोर्थ फॉर्म कहिड़ो टेंस आहे पास्ट कंटिन्यूअस आहे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हिन जा छा थींदा वाज़ ऐं भरिसां छा लॻे बींग लॻे हाणे हिन जो पैसिव थींदो शी ऑब्जेक्टिव केस हर ऐं हिम जो सब्जेक्टिव केस छा थींदो पहिरियों स्टेप इहो आहे पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब छा आहे was being and were being so we have to keep here the was being according to this new subject verb जो कहिड़ो फॉर्म थर्ड फॉर्म हर पैसिव में थर्ड फॉर्म बय ॾेई छॾींदासीं आख़िर so she was calling him he was being called by her तव्हां बि ईअं कयो आहे न हाणे हिते त पाण थोरो प्रैक्टिस तौर ते मूं चयो तव्हां सेंटेंस कयो असांजे टेस्ट में को सेंटेंस असांखे करिणो कोन पवंदो हुते ऑप्शन हूंदा असां वटि पर मिसाल तौर ते सेंटेंस शी वॉज कॉलिंग हिम पैसिव अची वियो ही वॉज बीइंग कॉल्ड बाय हर ॿियो ईंदो ही वॉज कॉल्ड बाय हर ॿियो ही इज़ बीइंग कॉल्ड बाय ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय हर असां जॾहिं एक्टिव सेंटेंस ॾिसंदासीं त पैसिव जो मेन शइ आहे त असां हेल्पिंग वर्ब सुञाणो त हिन जो पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब कहिड़ो आहे छा इहो सब्जेक्ट सां मैचिंग करे पियो मिसाल तौर हिते हुजे हा ही वर बीइंग वर्ब बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस जो आहे हेल्पिंग वर्ब पर ही सां वर्ब बीइंग कोन लॻंदो छा लॻंदो वॉज बीइंग लॻंदो सम्झ में अचे पई न ॻाल्हि बाबा चलो मां सेंटेंस लिखंदो वञा थो जंहिंखां पुछां हुनजी पैसिव ॿुधाईंदो वञे सही आहे बाबू इहा त You can translate this sentence. This is the active sentence. Who would tell me the passive of this sentence? Yes, Mr. Lashari Saab. This sentence can be translated by you.
शाबाबा दिस सेंटेंस ॾिसो पैसिव ऑब्जेक्ट आहे दिस सेंटेंस हेॾा अची वियो एक्टिव में कैन त पैसिव में कैन बी दिस सेंटेंस कैन बी वर्ब जो थर्ड फॉर्म कैन बी ट्रांसलेटेड बाय यू सही आहे बाबू हाणे ऑप्शन इहो असांजे ज़हन में हूंदो हुते ऑप्शन 3 4 अची विया असांजे ज़हन में जेको सही ऑप्शन हूंदो हुते कंदासीं वरी मां ॿियो सेंटेंस लिखां easy and simple sentence they will visit Clifton जी बाबू केर ॿुधाईंदो सेंटेंस पैसिव वेरी नाइस सो मेनी हैंड्स आउट देयर गर्ल्स मां ॿुधाए जी बाबू जी अदी क्लिफ्टन जी बाबू ॾिसो कहिड़ो टेंस आहे ॾिसो whenever we have to convert an active sentence into passive first of all we must identify the tense which tense is that we are looking here the future simple tense in active the helping of will and shall but in passive will be and shall be so Clifton will be verb जो वही third form use कंदासीं will be visited by them आयो समझ में बाबू शाबाश He locked the door yesterday. This is the sentence which we have to convert into passive. Today we are going to make the practice of convert the active sentence into passive voice because it was your demand. Shabbat, ji babu. So many students demanded, sir, we have to learn about the active and passive because so many years have been passed, we have forgotten the basic lessons of passive too. So thank you. Who is there? Yes, Mr. He locked the door yesterday. The door, Yes, Mr. the door was locked by yesterday. Chado, the door. सब खां परे सुञा जे टेंस कहिड़ो आहे कहिड़ो टेंस आहे बाबा पास्ट सिंपल जो पास्ट सिंपल जो एक्टिव में डिड यूज़ थींदो आहे पर जेकॾहिं एक्टिव जो हेल्पिंग और डिड आहे पैसिव में वॉज वर एंड सो ही लॉक्ड द डोर यस्टरडे जे पैसिव पियो ॿुधाए द डोर वॉज लॉक्ड बाय हिम यस्टरडे यस्टरडे इट इज़ द अलॉटमेंट जॾहिं एडवर्ब वग़ैरह हूंदा आहिनि अलॉटमेंट एक्सटेंशन उहा आख़िर में असां सेम रखंदा आहियूं सो द डोर वॉज लॉक्ड बाय हिम यस्टरडे सम्झ में अची वई ॻाल्हि बाबा शाबाश He will have made a speech. जॾहिं ॾिसो सेंटेंस डायरेक्ट ध्यानु वञे माना असांजे तसवर जूं निगाहूं उन जो पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब ॻोल्हण जी तलाश कनि पहिरीं त सुञाणी त हीअ एक्टिव कहिड़ो आहे टेंस फ्यूचर परफेक्ट जे हेल्पिंग वर्ब आहिनि विल हैव एंड शैल हैव पैसिव में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन जी बाबू हाणे हिन साइड खां जी बाबा His speech will have been made by जी बाबा तव्हां ॿुधायो स्पीच विल हैव बीन मेड बाय हिम सम्झ में आई ॻाल्हि क्लैपिंग थी वञे न हेतिरी परफॉर्मेंस करे शाबाश वेरी नाइस You may attend this class as well. बाबा as well जी माना है to. मान जा या कड़ोला as well as बिशा as well सिर्फ. You may attend this class too या as well. जो है passive. Last one. जी बाबा.
जी बाबा, दिस क्लास में बी अटेंडेड बाय यू टू, आख़िर में साॻियो टू या एज़ वेल रखंदासीं। ॾिसो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे ऑल्सो, हिकिड़ो आहे लफ़्ज़ टू, ॿियो आहे एज़ वेल, टिनी जी मीनिंग साॻी आहे, हिकिड़ो ऑल्सो, ॿियो टू, ॿियो एज़ वेल। एज़ वेल ऐं टू जी जेका पोज़ीशन आहे सेंटेंस में लास्ट में हूंदी आहे। अक्सर करे तव्हांजो मशहूरु सेंटेंस ॿुधो आहे आई लव यू टू, लास्ट में आहे। इन साॻिए सेंटेंस खे हीअं बि चई सघिजे थो आई लव यू एज़ वेल, एज़ वेल। पर जेकर इन में तव्हां आल्सो यूज़ कयो त आल्सो जी पोज़ीशन मिड सेंटेंस जी थिए, उहो चवणो पवंदो आई आल्सो लव यू। जेकॾहिं हेल्पिंग वर्ब न आहे त सब्जेक्ट खां बाद आल्सो यूज़ थींदो, जे हेल्पिंग वर्ब मौजूदु आहे त उन हेल्पिंग वर्ब खां पोइ आल्सो यूज़ थींदो। सो आई आल्सो लव यू। सो हिकिड़ो सेंटेंस टिनि स्टाइलनि सां, आई आल्सो लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू एज़ वेल। सम्झ में आई ॻाल्हि? चलो एडवर्ब जॾहिं आयो तॾहिं हुनजी सिखंदासीं पाण। पैसिव, he must have informed me about that matter. This is the active sentence which we have to convert into passive voice. Okay, is there anybody who may say, sir, I am coming and I am coming, that sentence into passive voice? Who wants to come over on the dais? बाबा तव्हां मां केरु अचे थो, अचे थो सर, आउं कन्वर्ट कयां थो, सभिनि खे ॿुधायां थो, शाबाश। जी बाबा शाबाश। Okay, come here. Okay, you are raising your, please. Yeah, yes. Okay. Clap him, very nice. So many students are raising, but I am going to call him. Okay. We are going to look. Convert. Buddha. जी जी बाबा बुधा। अच्छा ही बट। Okay, please take this mic too. चलो। So whenever and wherever we have to convert any active sentence into passive sentence. First of all, we have to look at the tense, which kind of sentence is there. So here we are looking that it is the usage of must have. So first of all, we change subject object into subject. So here the object is in this sentence the object must have informed me. Here object is me and the subject is he. So we have to replace subject into object and object into subject. So here the object is me, so it would be converted into subject. So it's a subject, this is I. Now we have to convert object into subject into object. So here the subject is he, its object case is him. So the first step has been converted. Now the second step is that we have to put the helping verb of the in a passive according to this new subject as well as the tense. So here we are looking that it is the usage of must have. So it would be converted. We know It is the usage of must have, in active must have, in passive. We have to use the must have. Very nice. Can I make wonderful? So the second step has been covered. Now the third step, we are moving to the third step. That is in each and every sentence of the passive voice sentence, we have to keep the third form of the verb. So here already the third form of the verb has been used, so we keep it same informed. Now the third step has been done. Now the last step is that we have to keep the preposition before the object. So we are using here the verb is informed, so we have to use the preposition by him, and the extra part or enlargement of the sentence would remain same about same that matter. So now the
active sentence has been converted into a passive sentence. I will read both of the sentences. Active is that he must have informed me about that matter, and the passive is I must have been informed by him about that matter. So thanks. Thank you very much. Because he has converted in a really fantastic way. So thank you, Mr. समझ में अचे पई ॻाल्हि बाबू पैसिव ला असांखे ज़हन में यादि रखो त पैसिव जा हेल्पिंग वर्ब असांजे ज़हन में हुजनि ही त सिर्फ़ु असर्टिव सेंटेंस आहिनि निगेटिव जी पैसिव कीअं थींदी इंट्रोगेटिव जी पैसिव कीअं थींदी इंट्रोगेटिव निगेटिव जी कीअं थींदी डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड सां जी पैसिव कीअं थींदी इंपरेटिव सेंटेंस जी पैसिव कीअं थींदी ॿिया मुख़्तलिफ़ यूज़ेज आहिनि उन्हनि जी पैसिव कीअं थींदी इहो कंटिन्यूअस हिकिड़ो टॉपिक आहे पर ॿ क्लास हिन जा थींदा हिकिड़ो क्लास आहे थोरो बेसिक इंफॉर्मेशन असां सिखी पैसिव जे बारे में त असांखे पैसिव सेंटेंस कन्वर्ट कीअं करिणो आहे सो तव्हांजी डिमांड आहे चलो लास्ट सेंटेंस मां ॾियां हिकिड़ो वरी कन्वर्ट कयूं द डॉग barks at beggar. जी बाबा the dog barks at by present simple जो tense आहे passive केर तो ॿुधाए passive हिन जी शाबाश छा कंदासीं बाबू शाबाश सभई हथ खणनि पिया द डॉग ऑब्जेक्ट में हलियो वियो बेगर सब्जेक्ट में हाणे थोरो ध्यानु कजो हिते बाबू कॾहिं कॾहिं ऑब्जेक्ट सां गॾु हिते आर्टिकल यूज़ थींदो आहे ए एन द या सब्जेक्ट सां गॾु यूज़ हूंदो आहे जीअं हिते सब्जेक्ट्स आया त मां उर्दू में हिकिड़ो सेंटेंस चवंदो आहियां जब भी कोई एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ अगर कोई आर्टिकल हो आर्टिकल कड़ा ए एन द तो आर्टिकल को छोड़ना नहीं आर्टिकल को लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन को छेड़ना नहीं माना प्रीपोजिशन के असांखे हथ ही ना हिलाइणो उनखे असां कोन खणींदासीं पर जेकॾहिं हिते को आर्टिकल वग़ैरह हुजे जीअं हिन सां गॾु आर्टिकल आहे असां हेॾा खणी विया आहियूं बिल्कुलु आर्टिकल हुजे ए एन द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उहे असां उन सां गॾु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सां चेंज कंदासीं पर जेकॾहिं का प्रीपोजिशन हुजे त असां उनखे चेंज न कंदासीं साॻिए जाते रही सो बेगर हिन पासे द डॉग उन पासे प्रेज़ेंट सिंपल जो आहे बेगर सां सुटेबल हेल्पिंग वर्ब कहिड़ो आहे इज़ बाग जो थर्ड फॉर्म बाग्ड एट साॻी प्रीपोजिशन वर्ब खां पोइ लॻाए छॾींदासीं बाय द डॉग सेंटेंस जा क़िस्मनि वर्ब जे लिहाज़ खां ट्रांज़िटिव इंट्रांज़िटिव कुझु जी पैसिव थींदी आहे कुझु जी पैसिव इंट्रांज़िटिव जी कोन थींदी आहे उन लाइ हिकिड़ो बाक़ाइदा डिस्कस क्लास में कंदासीं सो ही बेसिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ही असांजी पैसिव जे लिहाज़ खां त पैसिव जा सेंटेंस असां कीअं बणायूं त उन जे लाइ असांखे मेन शइ आहे त ही वर्ब फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब असांजे ज़हन में हुजनि त एक्टिव में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ थींदा पैसिव में ही निशानियूं या ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ थींदा असां स्टेप छा कंदासीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही हेल्पिंग वर्ब लॻाए वर्ब जो हूअं ई थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो आहे ऐं उन खां पोइ प्रीपोजिशन असां जेका ज़रूरत मूजिबि लॻाईंदासीं हिते बय लॻाई वई आहे पर तव्हां जेका हायर क्लास में जेका टेस्ट वग़ैरह ॾींदा त अक्सर करे ऑब्जेक्ट वग़ैरह या बय वग़ैरह सां को ॾियनि ई न को ऑब्जेक्ट तॾहिं बि सेंटेंस सही थी वेंदो सिर्फ़ु हेसि ताईं सेंटेंस थी वञे मिसाल तौरु एट ताईं थी वञे या ऑब्जेक्ट ताईं थी वञे इहे थी सघंदा सेंटेंस बहरहाल असां हिकिड़ो बेसिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हासिलु कई त एक्टिव मां पैसिव में सेंटेंस कीअं चेंज कनि सम्झ में अची वई ॻाल्हि बाबू सो इनशाला वी विल लर्न मोर इन कमिंग क्लासेस सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंड द क्लास थैंक यू वेरी मच